afternoon, ladies and gentlemen. It is my utmost privilege to welcome you all to an enlightening session at OCLF 2024. Our first speaker needs no introduction, yet his contribution deserves a word of it. A passionate researcher, prolific author, and the driving force behind many revelations about India's most debated mysteries, Mr. Anuj Dhar has captivated audiences worldwide with in-depth investigations into the lives and legacies of Subhash Chandra Bose and Lal Bahadur Shastri. Mr. Dhar's latest book, The Post-Deception Declassified, published by Penguin Random House, co-authored with Chandrachud Ghosh, meticulously examines the mystery surrounding Netaji in light of declassified files from India and abroad. Guiding our conversation today is a seasoned journalist, social entrepreneur, and an innovator in the realm of modern India or modern media. Mr. Vikrant Shandalia has dedicated over 2 decades of his life to shaping the landscape of Indian journalism. From his early days as a crime journalist with Zee News to becoming one of the youngest editors in India, his journey has been nothing short of remarkable. His editorial leadership across major publications like the Times of India and his pioneering work in launching digital platforms such as Discover Nagpur and Next of Campus highlights his deep commitments to media excellence. Ladies and gentlemen, I welcome you all. This is going to be a 40-minute session within which we will have questions from the audience. Thank you. I hope you enjoy the session. Over to you. We have an expert over here, Anuji, so I would like to just, I have some inquisitions. So on your behalf, I would like to ask him certain questions. So to begin with, I would like to ask you, आज की डेट में though I used to pass my history exams with grace marks only, but this assumes very much importance. History these days because it sets the political narrative on either side of the divide, and so this is very much important that there are claims and counterclaims. To begin with, I would like to ask that there are detractors also make you famous as a conspiracy theorist. So why would they do that, and what does this precisely mean? I didn't get that concept from you. First of all, I'm going to welcome to the club because if I told them the marks I scored in history, I think I would be kicked out of the school. Because I was also very poor, but it's after I passed out, it's only then I developed interest in history, and I began searching about, for example, the monuments in India. I understood from probably this aptitude came to me naturally that you should go to the source of information. So when you're studying something, for example, I have interest in Qutub Minar. Who built it? And there was controversy about Qutub Minar, not being built by the Qutubli neighbor. So what you do, you start by reading the original document from that period, 100 to 200 years after Muhammad Ghauri kept Reddy, and then his Qutubli came, and then what is written on the Minar. So I always knew that you should always go to the source, and from source you should come to the interpretation. Now this conspiracy theory, this is heard at me, this tag and all that, but well, let me tell you what is a conspiracy theory, because I have highlighted the biggest conspiracy theory that we have in our country, which nobody wants to talk about. When Rajiv Gandhi was assassinated, and you will find it talking to believe that in our parliament, India's home minister come from the state. He leveled accusation that Rajiv Gandhi was becoming such a big leader, and the Americans were afraid of him. And the Americans and CIA were responsible for killing Rajiv Gandhi, which is utter nonsense. Which I demonstrated, it's utter nonsense. So people in our country have this disease called, they promote conspiracy theories that they will do for past 40 years. And whoever will say something which they do not like, they will accuse that person of being conspiracy theorist. I have been on my efforts, like in producing my book, you will see records, PMO records, in Congress is kind of talking about me, responsible for the release of about 1,300 declassified files from the PMO and MHMC. So if I'm a conspiracy theorist, how come my efforts have led to the release of so many secret files in a country where declassification was never a big thing?
There was a case in Allahabad High Court. I mean, you can always cross-check in this Asian time. Everybody can go to the websites. You can go and check what is being discussed about me before the Central Information Commission, where I appeared before the important people in the commission. And this is in Congress time. This is nothing happened in BJP time. So there was a judgment on the Netaji issue, so to speak, by Allahabad High Court in 2013. So they have discussed me at length, and this is not a statement made by a judge off the record or in the passing. I'm putting on the official record of the court order, in which they make specific reference to me and they praise me that whatever this person says has a sound basis. We fail to understand why government is not reacting or not responding. So I'm glad you asked me because this has been dealt in detail in our books that we are not conspiracy theorists. We go around the world, we obtain information not only from this country but outside also. So I don't think there's any conspiracy theories in the world who would have a backing from a court of law. And leaving aside other people who have practiced publicly and they call us to recruit places and we give make up. So हम सारी thank you for that. So अनुज जी हम सारी conspiracy theories को will try to unravel. एक बहुत ही basically सबसे पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूँगा कि it is always said and certain left historians are accused कि they have set the false narrative और वो शुरू से ये मुगल्स के बारे में हो या कांग्रेस के ओरिजिन के बारे में है या गांधी जी की लीडरशिप बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे हैं और हर बार ये एक्यूज किया जाता है कि जो लेफ्ट लीनिएज के हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये why and how they were allowed to hijack the entire history system or just writing history. Why were they inducted or who inducted them and how exactly transpired? नेताजी वाला केस बड़ा अजीब सा है मतलब वो उसका प्रॉब्लम है कहीं फिट नहीं आता बट इस वाले केस में इंटरेस्टिंग कहानी कि जो नेताजी केस में जो नैरेटिव है कि सुभाष बोस मतलब दो बेसिक जिसमें आई स्टैंड बाय इट एंड आई सपोर्ट दैट थिंग बिकॉज़ आई हैव गॉट इट एविडेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस American, British, Indian, whatever. So we go by record. We don't go by all this mumbo jumbo what somebody said over there. To me, what Ram Guha says has no consequence. I want to see the Gandhi collected works. But Gandhi said it's only then I'll go to Ram Guha and see what spin he's putting in because of his, he wants to showcase his audience in America. Then I want to see the origin story. Now, the Netaji case में दो basic problems हैं या बोले कि the thing that we stand for, people like me today, is that we think and there is a sufficient evidence on record to show that India's becoming free has to do with Netaji. NSA has to absolutely minimal. There is no role because the government reports are very clear. They were not bothered about what Gandhiji and other these Ahimsavadis were doing. They were only concerned with the Indian army standing up and almost revolting. The second thing, we support the line that the official view of Subhash Bose is untrue. The left historians have never supported this thing. They were totally on the side of the regime. So they have run Subhash Bose, for example, in Bengal, they used to call him Toju's dog and whatnot. So the left have absolutely on the other side, so they are opposed to what we say. Interestingly, it is in the right wingers of the last 30, 40 years, I'm talking about, if you see the old editions of Panjan and Organizer, it's the rightist who have tracked this line of Netaji not dying, and they were the ones who were even making arguments for it or even giving space to articles. So if I go back to, say, 30, 40 years, I wouldn't find Times of India running stories on even Netaji history, but in Organizer I find people being quoted, and there were people from the right side like Babar, Mudok and others, they are going to this place where the plane crash, they said happened in Taiwan, going there, coming back, making public statements. So even then. So in Netaji case, it's very interesting because on one hand, some people are telling, trying to portray Netaji as a leftist, but there are the people on the right who have always backed Subhash Bose on these two grounds. Leftists have been totally opposed to us on Netaji, these two points. So what they do, the smart thing, what they have done on the left side, and by left I don't mean only the communist. There's a whole this gamut of the organizational people who are part of the left now. All of these people are like using Netaji to attack the rightists. For example, they will make people on Netaji was having so many Muslims in the army. So you guys are coming up. So Subhash was not coming up. So that's all. So they use Netaji to exploit his name to further their own agenda. So I'll come to Netaji के गुमनामी बाबा वाली theory के बारे में भी कुछ
रीट्रैक्ट्स हैं, तो उससे पहले हम लोग महाराष्ट्र में हैं अभी. There is a theory. I was shocked, as a 25-year-old journalist when I came to Nagpur. Then I got to know कि जो सबसे पहली mob lynching हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो 1948 में महाराष्ट्र में हुई थी. नरेंद्र सावरकर जी को मारा गया था, और वही गांधी जी के अनुयायी जो अहिंसावादी थे, उनके बाद नाथुराम गोडसे ही किल्ड गांधी जी. उसके बाद में there was, so is it true कि बहुत मास किलिंग हुई यहाँ पे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स की, और उसके बाद में that and it was never reported anywhere at all. So, and if at all it was not reported anywhere, so what do we have, what kind of facts do we have to back our claim, or is it true? इसमें तो विक्रम संपत, I think we need not even discuss anything else. विक्रम संपत is authority on these issues, but विक्रम already mentioned किया है. हमने भी बचपन में सुना था कि मास किलिंग हुई, nobody reported it. So even in Delhi, so we talking about Maharashtra, from Delhi point of view, we heard about it, but it was never substantiated by way of any article. But Vikram, I think, has done this for the first time. He's brought it on record. He has quoted records, and he has published. Probably in future, when Vikram is here, probably he is the best person to talk about it. I would say that coming to the Netaji issue now, Netaji always had very good vibes in Maharashtra. I mean, I also get very good vibes. I was telling you just now before we entered that. I had fantastic, time, going around, and my books are in Marathi available today. And given talks here, which have been well received. My best ever outside of any IITs in Latur. I mean, to be given a Brahmin presentation to 2,000 people is a big deal. You enjoy it like anything. So Netaji had connections with Nagpur, of course. You have a statue here. His brother was here. I think in the first, meeting of forward block was held here in Nagpur. And most people are not aware, as I must tell the locals here, that when we speak of INA, the senior most officer in the INA was General J.K. Bhosle, Shivaji Maharaj descendant. He was the topmost guy in the INA. Another person who has, of course, become very infamous is the person who floated the theories about Tejo Mahal, Taj Mahal, Oak. So Oak was a deputy under Bhosle. He was also INA, so right to PQ, Purushottam, I think, Oak was there. Ian Oak. And Ian Oak, I must say something about him, that even though he believed in conspiracy theories, I don't accept his theories. So whatever be his intention, but he's some of the things he's got horribly wrong. I can tell you what he wrote about the Lal Court in Delhi and Red Fort of Delhi. He's missed, much. Anyway, but the thing about Oak, that even though he believed in all conspiracy theories, when it came to the Subhash Bose case, he believed completely Habibur Rahman, who was the main witness to Subhash Bose's death, who went to Pakistan eventually, and Habib was his senior in this. So the order in INA, if you can say, put it that way, is General J.K. Bose was chief of the staff, the deputy chief of staff was Habibur Rahman, and Oak was under. And Oak, till his last breath, he believed that whatever his friend Habib told him was true. So on one hand, this man is promoting all kinds of theories about, Taj Mahal being not Taj Mahal. But when it came to Netaji's death, he believed his Muslim friend, Habibur Rahman, but he told me, so I think this is history. So this is how complex and yeah. So, okay. ये सारी जो conspiracy theories हैं, इसके बारे में अब as a journalist as well, I am confused. So हमारे readers, audience तो बहुत ज़्यादा confused रहते होंगे. There is a lot of chaos. There are claims, counter claims. तो as a former journalist, as an author, as a researcher, आपको क्या लगता है कि कोई mechanism कहीं पे सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कहीं तो एक ऐसा mechanism सेट करना चाहिए कि जहाँ पे ये सारे myths बस्ट हो सकें, या क्या सच्चाई क्या है? मतलब इट कैन नॉट बी हमारे ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए का क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होने. लाइक फॉर इंस्टेंस कि आपकी जो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी थी कि आपने जो ये क्लेम किया कि गुमनामी बाबा सुभाष जी जो है वो he survived as गुमनामी बाबा, he survived till 80s if I'm not wrong, and वो यहाँ रह रहे थे, तो उसके ऊपर जस्टिस मुखर्जी कमीशन was set up to find it out, and they claimed and they refuted this particular theory of yours. तो उसके बाद I was just discussing it with you अभी सेशन से पहले ही, मैं जब आपकी बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और you have reasons to believe it, and of course
it was absolutely incorrect on his part. लेकिन जब कोई कमीशन अपॉइंट होता है, कोई रिटायर्ड जज जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ही कम्स अप विद सर्टेन फैक्ट्स, सो वो फिर दोबारा एक chaotic सिनेरियो क्रिएट करता है. क्या एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और अगर वो मैकेनिज्म होना चाहिए तो कैसा मैकेनिज्म एक सेट कर सकते हैं? मैं इसको घुमा फिरा के आंसर दूंगा, बिकॉज़ मैकेनिज्म का प्रॉब्लम ये आता है कि the government of India is the biggest stumbling block right now. So I attack government every day. The government is wrong. They are hiding things from us. So and that is a very long and bad case. But जो आपने वो जो पॉइंट्स रेज किए उसके बारे में, तो ये आपने बोला chaos था, ये chaos बहुत था पहले. और आप मेरे बारे में आप ये समझो कि आप तो एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप ये समझिए कि आपने अनुज आपका रिपोर्टर है, आपने बोला आपको जाके मुझे रिपोर्ट करके आ, ठीक है. अब नॉर्मली रिपोर्टर जाता है सुबह 4 लोगों से बात करता है, शाम को अपने खबर छापता है 200-300 वर्ड का स्पेस टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेजेंटेशन में करके. अब इमेजिन कीजिए कि वो रिपोर्टर 20-30 साल तक यही रिपोर्टिंग करता है एक ही चीज़ की. तो मैं उसको मेरे को सारा मैंने उसके पीछे मतलब मैं लोगों की जन्म पत्नी लेके घूम रहा हूँ, कौन क्या है, किसने क्या काम किया, कौन सी शाहनवाज कमेटी बैठी, शाहनवाज कमेटी का उसका चाचा कौन है, उसका भाई कौन है, उसकी फैमिली कहाँ बैठी है, ये आदमी है, इसके खानदान इसका पोता कहाँ है. हम तो सारे पूरे जन्म पत्री लेके हर एक आदमी कुंडली लेके पूरी रिसर्च कर रहे हैं, पूरे करेक्शन निकाल के. तो उसमें ये कि जब आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, किताबें लिखी हैं और किसी ने किताबें, लोग कहते हैं ठीक है, देयर आर पीपल हु आर मच बेटर स्पीकर देन आई एम, दे कैन वेरी फोर्सफुली से नो दिस हैपेंड. But then when you, if you see the books and all that, so we are the only ones who have written books, उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन लगा के, और हमारे काम है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन जैसे निकाल के लाएं भारत से, अमेरिका से, CIA से, तो वो कोई और हमारे आसपास भी नहीं होता. तो जब ये केओस जो था, जब मैंने शुरुआत की ये पूरी रिसर्च की, तो मैंने उस केओस को क्लियर करके पब्लिक को 2005 में अपनी पहली किताब में ये बताया कि आप सिर्फ इस कंसंट्रेशन कीजिए कि इस केस में 3 थ्योरी हैं. पहली थ्योरी दैट ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश ऑफ Auschwitz in present day Taipei City, Taiwan, in a plane crash which happened immediately after the second World War. The second theory, of course, is Russian angle that he died in a. People say openly, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली मेरा खुला बोलते हैं. You name it, people from the intelligence ministers, जर्नलिस्ट तो सारे जर्नलिस्ट बोलते हैं नहीं बात कैमरा लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने इंक्वायरी स्टार्ट की थी हिंदुस्तान टाइम्स में, क्या तो बिगाड़ने में टाइम वेस्ट करो, सबको मालूम पंडित जी ने मारा उसको. वो ऐसे खुला बोलते पंडित जी ने मारा था. मैं आपको लेफ्टिस्ट दिखा दूंगा पेपर, उसमें लेफ्टिस्ट ने भी लिखा है नेहरू का इस्तेमाल. तो इस बात की 2-4 लेफ्टिस्ट वाले बेचारे अच्छी बात लिख चुके हैं इसके पास. तो उसमें ये खुला लोग देते हैं, बात खुला बात होती है कि ये था. और तीसरी थ्योरी गुमनामी बाबा को मैंने नहीं निकाला. ये आजकल लोग 2 चीजें हमारे मन में गलत होती है कि आपका बिलीफ क्या है. आई एम नॉट समबडी हु बिलीव्स एनीथिंग. मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं किस में विश्वास करूंगा अपने को. आई ओनली गो बाय एविडेंस एंड डेटा. सो इट इज नॉट माय बिलीफ, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड डेटा. इट्स नॉट माय बिलीफ. I may, if I have a belief, I'll tell you this is what I believe is possible. It would be my conjecture. So I don't go by my belief. I have no knowledge, personal knowledge of these issues. I was not there in the plane crash. I never went to Russia, so I have no personal knowledge. But I can talk to you. You have personal knowledge, and on that basis, I can research and I can offer some data to others. दो जैसे गुमनामी बाबू वाला केस खोलने वाले तो हमने नहीं बोला, उनकी भतीजी ने जाके बोल के उन्होंने बोला. मैं तो सिर्फ आपको डाटा कलेक्ट करके एविडेंस को इकट्ठा करके फिर उस एविडेंस को वेरीफाई करवा रहा हूँ अलग-अलग जगह से. मैं कर रहा हूँ उसका मैं तो तीसरी थ्योरी गुमनामी बाबू की ये है कि मेरे को वन कैन ब्लेम मी कि मैंने ही गुमनामी बाबू की थ्योरी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उठाया है. स्टार्ट मैंने किया और उसको मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम डाटा बहुत अवेलेबल हो गया, जो पहले अवेलेबल नहीं था अब अवेलेबल हो गया. तो उसमें ये कि जो बेसिक फंडामेंटल है, जो मेरी फाइंडिंग्स है, व्हिच इज कंसिस्टेंट बिकॉज विद एवरी पासिंग ईयर वी कीप गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन, मोर डेटा. और उसमें भी 2 पॉइंट है कि एक चीज जो होती है कि मैं उसको लिख सकता हूं कि मान लीजिए कि मैंने जैसे आपको बताया गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मुझे धांधी दिखाई दी या किसी ने स्टेटमेंट दिया, जैसा प्रणब मुखर्जी ने हरकत करी, मैं आपको किताबें लेके वो साइटेशन दे दूंगा. लेकिन अब ये इमेजिन करो कि आप फॉर्मर डायरेक्टर आईबी हो, ठीक है, कि आप फॉर्मर सो आप फॉर्मर आईबी चीफ हो, आपने मुझे कोई बात बताई, ऑब्वियसली मैं किताब में आपका नाम लिखूंगा. So there are many inputs which come to me which I cannot cite, and some of these inputs have come even from abroad or from this country, even outside, and all are merging on what I'm saying on same point. So the first thing is the evidence for the plane crash is very sketchy. I mean, यहाँ लोग जैसे कुछ नेताजी के परिवार के लोग हैं, अब उनका एडवांटेज है, मेरी पीछे बोलते हैं फॉरेन में रहे, मैं तो ये दिल्ली का आदमी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, मेरा माय फादर वाज अ क्लर्क व्हेन आई वाज बॉर्न,
I don't have that kind of, ways with words that not studied educated in America or England. But these are lucky people, they have lived in America and other countries, they speak fantastic. And that works like charm in our country, isn't it? किसी को आप बोल दो कि वो तो प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी का आपकी हवा आदि पूरी खसक जाएगी तो हार्वर्ड का साहब आदमी होगा और जो साहब आदमी होंगे वो कहेंगे कि हमें बच्चे को डालना है अपने घर पे तो वो ऐसे इज्जत करेंगे बेचारे तो वो आपके सामने गलत इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि साहब मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हूँ मैं प्रोफेसर हूँ तो ये नहीं बताएगा कि मेरा बाप कौन सी ठीक है तो अपने अपने पॉलिटिकल वो कंसीडर करते हैं कि हमारा इंक्लिनेशन क्या है ये है वो क्या तो वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था ये लोग वहाँ पे ये गोप्रो कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे सुभाष बोस के बारे में ये तो आपका एविडेंस है वहाँ राजीव संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ या जो भी ऐसी घटनाएं घटी संजय गांधी को लोगों ने आते देखा एयरपोर्ट पे दिल्ली में क्लियर एविडेंस people saw him taking off in the plane लोगों ने देखा there were people in the area who saw the plane unfortunately the plane came down then Sanjay Gandhi's body was retrieved and photographed autopsy भी हुई so chain of evidence very clear nobody disputes Sanjay Gandhi died in that plane crash and I was there India और अपने ये सीएम थे यहाँ के आगरा के सब कुछ यहाँ ऐसा कोई एविडेंस नहीं the whole story है because उन्होंने अंग्रेजों ने हमारी नई किताब में खासकर देखी हमने पूरी जो इंक्वायरी उन्होंने की थी अमेरिकन ने स्टार्ट की थी पहले उसके बाद ब्रिटिश उसमें आए उनने जो इंटेलिजेंस की इंक्वायरियां करी हैं उन्होंने साफ उनको पता लग गया कि पूरी की पूरी कहानी इट इज बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट कोई एविडेंस नहीं जाती सब डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करती है डेड बॉडी है ये डेड बॉडी की फोटोग्राफ जबकि जापानी खुद कह रहे थे पीछे यार बॉडी को संभाल के रखना इनको कोई मानेगा दे आर आल्सो ऑब्जर्व जापानीज वुड इन अदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे इंटरसेप्शन में हमने कोट किया है किताब में जैसे इंटरसेप्शन अमेरिकन ने किया वो बता रहा है कि अगर ये मर गया है तो उसकी बॉडी को संभाल के रखना नहीं तो कोई मानेगा नहीं तो इनको जापानीज नहीं बताते Second World War खत्म नहीं है this person is sought after he is probably in the eyes of the other side of the war criminal you cannot just claim that he has died and not have his body तो even Japanese are aware कि body has to be secure but उन्होंने कुछ नहीं किया फटाफट बॉडी को फूंक के सेट करा तो कोई एविडेंस आपका नहीं है ना बॉडी है ना बॉडी की फोटोग्राफ है सिर्फ आई विटनेस अकाउंट है कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है सब रिकॉर्ड हमने फूंक दिए वो क्लेम करते हैं कि हमने फूंक दिए या थे ही नहीं पता किसी को नहीं So the whole story of Netaji's death is based on statements orally made by Habibur Rahman and Gopal Ji. तो जब उनकी इंटरोगेशन थी उनकी रिपोर्ट में डाली जो इंटरोगेशन रिपोर्ट थी जो जानबूझ के भारत सरकार ने छिपाई व्यवस्था जानबूझ के जो रिसर्चर अपने आपको बताते हैं बड़े बड़े कि मैं हार्वर्ड का हूँ मैं फलाना ढंग का हूँ जानबूझ के उसको कोट नहीं करते जैसा मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आई एम बिट ऑफ ट्रैक किसी भी इंसान ने सुभाष बोस पे अगर 2% की रिसर्च करी उसको एक बात का मालूम होना चाहिए कि जब नेताजी यहाँ से भारत से निकल करके गए थे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी उसमें जिंग फॉर्म का भी लिखे पर बताने का टाइम में बस तो यहाँ से जब निकले एंड ही वेंट टू जर्मनी तो जर्मनी से उन्होंने राष्ट्रपति बोस को चिट्ठी दी और किसी भी आदमी ने अगर सुभाष बोस के नाम पे 2% सिर्फ उसका मालूम है कि ये चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी में उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपनी ट्रू फीलिंग्स जाहिर कर दी यहाँ तो खुल के बोल सकते हैं वहां जाके मैं सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखा कि ये आदमी को मैं 2 बार हरा चुका हूं ये कभी हमको सपोर्ट नहीं करेगा हमेशा हमसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है लेकिन इसको बीच में मतलब खुश रखने के लिए फॉर एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कभी-कभी तारीफ कर रहे हैं दिस इज द बैकड्रॉप टू फादर ऑफ नेशन वाली बात कि कभी-कभी खुश करने के लिए मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की तारीफ करते हैं इस लेटर के बारे में सबको मालूम है कि जर्मन आर्काइव में नेताजी का लिखा हुआ इंग्लिश में लेकिन कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट नहीं करना चाहता हमने वोट किया वो एजेंडा लेके चलते हैं कि हमको तो अपने उनके फेवर में काम करना आप कैसी हाउ कैन यू इग्नोर सच द ग्लेरिंग थिंग्स कि हबीबुर रहमान की इंटरोगेशन रिपोर्ट्स अवेलेबल है नेशनल आर्काइव में आपने वो रिपोर्ट कभी देखी ना वो आप साइट करते हो और आप क्लेम करो कि वो मांगे नहीं नेशनल तो हमने वो सारा किया तो एविडेंस मैच नहीं कर रहा ये साफ और दूसरे कि हबीबुर रहमान ने कई लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी और पकड़ दी गांधी को भी सुनना है गांधी का रिपोर्ट किया कि ये वही बोल रहा है जो उसको ऑर्डर करता है So it's not adding up. The second theory he was in Russia. Russia वाले के अंदर unfortunately there one point be very good point that you have raised. Well, there are a lot of intelligence reports which talk about his presence in that country. The problem is you might ask it then why is not open case if there was intelligence. But I ask you कि दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है कराची में उसका क्या प्रूफ है आपके पास? हम पाकिस्तान को डॉसियर बना के देते हैं. पाकिस्तान गवर्नमेंट भी सेम कोड है हमारे पे हमारी जैसे मीडिया में जो एक ही सिस्टम से तो एविडेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ एविडेंस में ना आएगा तो और लीगल टेक्निकल ग्राउंड आप रिजेक्ट कर दिया उसको
अब आप पूछो उनसे कि अमेरिकी जो गए थे अवाटाबाद में बिलावल उनके पास में कौन सा एडमिशन नहीं उनके पास। तो दुनिया में ऐसे काम नहीं होती लीगल एडमिशन पे, लेकिन आप उनको टेक्निकल लीगल ग्राउंड पे इस स्टोरी को ये लोग असाइड कर रहे हैं, बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी देयर क्लियर एविडेंस कि ये आदमी वहां पे था। लेकिन ओनली प्रॉब्लम ये कि स्टोरी इज लाइक उनके जो ये थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं कि मार दिया उनको सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुझे समझ नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी इसी वाहियत तो कैसे कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड अ बेसिक फंडामेंटल अबाउट इंडिया रशिया रिलेशनशिप। स्टालिन के जिंदा रहते रहते हमारे रूस से संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, स्टालिन के बाद से अच्छे नहीं। खुश्चेव के टाइम में तो खुश्चेव यहाँ पर आया, यहाँ पर हो सकता नहीं तो रिकॉर्डिंग करो, बस लेडीज बैठी हुई है, स्टार्टिंग में तो गाली क्रॉस किया नहीं। गांधी जी मरे हैं तो उन्होंने 2 दिन तो रिफ्यूज करके यहाँ नहीं भेजे हमारे पास, उनको गांधी को रिएक्शन रिपोर्ट में यूज किया। हमारी पता नहीं क्या खास बात थी कि हमारी पहली एम्बेसडर इंडिया की रशिया में पंडित जी ने अपनी बहन से भेजा, स्टालिन ने गले सवाल कर दिया उसको। तो इसलिए की बात है कि जिस आदमी का रिश्ता ही आपसे अच्छा नहीं हो, आप बात सब करने को राजी नहीं, आपको गाली गलौज दे रहा हो, उसके कहने पे क्या वो ऐसे आदमी को मारेगा जिसकी मदद वो पहले कर चुका है। सुभाष बोस ने अब वहाँ डॉक्यूमेंट निकल के आ रहे हैं कि नेताजी जब जापान में थे उन्होंने 44 में रशियन जो एम्बेसडर था उससे असाइलम की लेटर लिखा उसने चेकर बोले कि आई वांट टू टेक योर सपोर्ट। तो वो आदमी सपोर्ट उनको ले रहा है, दे रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, रशिया से ही निकल के वो जर्मनी पहुंचे थे। तो अपने जानने वाले को आप मार देंगे, उसके लिए जिसको पसंद नहीं करते, दैट मेक्स नो सेंस। तो रशिया में यही निकल के आ रहा है कि वहां प्रेजेंस है, लेकिन मारने की कहानी डजंट सीम Gurnani Baba seems absolutely mind boggling. It doesn't sound believable. मैं तो कम से कम आप लोग तो बड़े महाआदमी कि आप डिस्कस कर दो। मेरे को जब पहली बार किसी ने बताया, मुझे नहीं सही याद कि ये कोई गांव से यूपी से लोग आए और ये लोग कह रहे हैं कि गुरनानी बाबा से बात नहीं हो सकती। मैं तो हिंदी गाली दी तो बैठा तुम पागल हो, स्मार्ट हो, से मैं तो आपके पहले बात अरे बैठ समझे। और पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि नेताजी कहाँ से आ गए 80 के अंदर, वो कहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये पंडित जी और सरदार पटेल, वो कहाँ की है, वो उनकी लाइफ की बात कर रहे हैं 1920 की 30 की, कहाँ 1980 में राजीव गांधी का टाइम था। एक्चुअली डिड नॉट इवन रजिस्टर में कि उनकी उम्र कितनी थी सुभाष बोस की। अभी बाद में मालूम चला कि यार सुभाष बोस में और सरदार पटेल में 22 साल का फर्क था एज का। गांधी उनके फादर के ऑलमोस्ट बराबर के थे, 28-29 साल का फर्क, और सुभाष और अपने पिताजी के साथ में आते बच्चे थे। तो ये लोग कंटेम्परेरी नहीं थे, ये लोग सुभाष से काफी यंग थे। मोरारजी भाई जो थे सुभाष बोस से बड़े थे, वो हमारे लिए महीने से थोड़े से बड़े थे। तो वो ही वाज वेरी यंग, तो ही वाज प्रॉब्लम। तो एनीहाउ तो ये कि वहां पे मोटा जो एविडेंस निकल के आ रहा है कि I witnessed account the people who were in touch with him who had no motive or reason to tell lies, including freedom fighters stop them. 2-4 वो उनसे कांटेक्ट में है, तो सन प्रमुख कांटेक्ट में, why would गवालकर be in touch with him? गवालकर जी को करने के लिए 1000 चीजें राइट। फिर ऊपर से कि उनके करस्पॉन्डेंस चिट्ठी पता मिली, उसमें कहानी मैच कर रही है। It's the only ground on which the Gurnani Baba story was set aside because of the negative handwriting and deep report, which we have demonstrated कि वो गवर्नमेंट की गलती रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकारी रिपोर्ट में 2 पंजे लिख दिया कि साहब वो तो हैंडराइटिंग मैच ही नहीं करती। हमने वही रिपोर्टें जाकर की हैंडराइटिंग चेक करी अमेरिका में, अमेरिकन एक्सपर्ट बैठे हैं टेक्सास में, साहब उनका कुछ ट्रेंड बात बोल से है नहीं, यूएस आर्मी के रिटायर्ड आदमी है कल साहब, उनका कुछ निर्णय ना हो मतलब उनको तो हमने अप्रोच किया बस किसी थ्रू यूनियन अमेरिका से पैसा दिया, ये सैंपल तो वाशिंगटन पोस्ट की हैंडराइटिंग, ये गुरनानी बाबा का सैंपल नहीं बताया क्या केस है, बस ये बताओ कि ये हैंडराइटिंग मैच करनी कि नहीं करी, उसने ऑरेंजर्स करने की रिपोर्ट हमको दी, these are the same हैंडराइटिंग। So this, but the whole thing, the one side is very clear that the government of India is a hostile party in this entire side. So which brings me to my next question. So एक चीज समझ के परे जो है वो ये है कि ये नैरेटिव्स तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकारों ने ये नैरेटिव्स क्रिएट किए और they wanted a supremacy of leadership to be established with Nehru ji rather than सुभाष जी, और there are theories कि अम्बेडकर जी के साथ में भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में भी। आपने एक और चीज बताई, would like to tell all of you कि अनुज जी was also brain behind a very good movie by the name of Tashkent Files, so which was made by Vivek Agnihotri और पूरी रिसर्च और सारी चीजें Mr. Agnihotri was the backbone. So he was the back. Number 2, 3. So अब वहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बारे में भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है
जब ये कांग्रेस सरकारों ने इन चीजों को छुपा के रखा, ये चीज समझ में आती है। लेकिन 77 में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई और मोरारजी भाई was absolutely in opposition to Congress. You know, he was so वो सरकार तो that detested Congress. उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे 5 साल सरकार रही एनडीए की, चलिए वो भी कोalition गवर्नमेंट थी। ये वाली जो सरकार है 2014 से मोदी जी, तो इट वाज वेरी मच परसीव्ड कि ये आएंगे, अभी इनको 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और उसके बाद में एटलीस्ट जो कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं which could definitely come up with, which could lay light on the reality. उसके अलावा proper investigations could happen कि इतने बड़े नेता, दो इतने बड़े नेता हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे बड़े हीरो सुभाष जी और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी, इतने बड़े इतने अच्छे नेता, उन दोनों की मौत हो जाती है और उसके बारे में क्लैरिटी कोई अभी तक नहीं है, और 10-11 साल इस सरकार को हो गए हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है कि why are they not throwing light on the reality? एक तो 10 मिनट का बोर्ड आ गया पर लेकिन मैं बताता हूँ बड़ी जल्दी बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, यू मेंशन मोरारजी भाई से, जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन, so there is some everything happened with the non कांग्रेस। in fact the मोरारजी भाई गवर्नमेंट, और आई थिंक मोरारजी भाई से अच्छा किसी ने नेता के लिए काम नहीं किया डायरेक्शन। मोरारजी भाई ने एक्चुअली प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर दिया ओपनली, देयर वाज अ डिबेट इन पार्लियामेंट। रशियन गवर्नमेंट से बातचीत हो, ये अपने आप में ये पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड चैप्टर है कि रशियन गवर्नमेंट से फॉरेन ऑफिस ने कैसे बातचीत नहीं की, और उन्होंने भी मोदी से बोला था, उन्होंने भी बात नहीं करी है। लेकिन रशियन गवर्नमेंट से जो बातचीत है पंडित जी के टाइम पे नहीं की, पंडित जी वाज अपोज एंड इंदिरा जी के टाइम पे बातचीत नहीं हुई है। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशियन गवर्नमेंट से सुभाष बोस के बारे में कुछ पूछा है, सो दैट वाज वीपी सिंह के ऊपर। इन द टाइम ऑफ देवी गौड़ा देयर वाज अ कोर्ट केस, एंड उस कोर्ट केस में उन्होंने सरकारी वकील को लपेटे में ले लिया था। उसने कहा कि तुम अपना स्टैंड बताओ, तो वो उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि ये जो ही की प्लेन क्रैशिंग थ्योरी में हमें दिखाई नहीं दे रहा एविडेंस। तो गवर्नमेंट ने ये इंक्वायरी करा, खुद एडमिट कर, तो उसके बाद में ये एक मुखर्जी कमीशन बनता है जिसमें बने हुए अभी भाई की सरकार थी। मेरा मानना है कि इसी तरह से जो पहली बार कोर्ट में केस गया नहीं थी, लेकिन ऐसा हाईकोर्ट में गया था 85 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। तो आई एम श्योर कि अगर 1999 में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती कोई कमीशन नहीं बनता। तो ये फर्क है कि ऐसी बात नहीं कि थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक थ्योरी ये भी थी कि मोदी गवर्नमेंट जो है पानी टेस्ट कर रहा है धीरे धीरे, जो चीज़ 60-70 साल में बिल्डअप हुई है उसको एक झटके में निकालेंगे ना, पुराना दवाई है तो जरा आराम से इसको इलाज करेंगे। तो एक व्यू ये भी है। लेकिन जब आपने बोला कि अलग पार्टी, देखिए अलग पार्टी, आप खुद सीजन जर्नलिस्ट हो कि पार्टियां चेंज होने से गवर्नमेंट की कोर पॉलिसीज चेंज नहीं होती। अब ये बहुत डिटेल्ड इशू है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पॉइंट ये है कि सुभाष बोस की डेथ हिस्ट्री को अनरेवल करने से उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि ये कहानी बाहर निकल के आएगी और बहुत पब्लिसाइज होगी, जो ऑलरेडी लोग मानते हैं पूरे देश में बहुत बड़े स्केल पे कि भारत को आज़ाद करने में सुभाष बोस की भूमिका नंबर 1 है और अहिंसा का कोई रोल इसके अंदर नहीं। वो फिक्शन है जो प्लांट किया गया था हमारे। तो जब ये बाहर निकल के आएगा तो पब्लिक विल डिमांड की जो आप अहिंसा के नाम पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में, आप जो अरबों रुपए आपने खर्च किए उसको कम करो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1947 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि अपने देश में लोगों को खाने पे पेट में रोटी आए ना, लेकिन दुनिया में शांति हम फैलाएंगे। तो ये लेकर के इन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उस गांधी ब्रांड पे करी है पूरे यूरोप अमेरिका में हर जगह। हमारे जेब के पैसे निकाल के मूर्तियां बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं अगर 2% का काम ये जो मैं सुभाष बोस में कर रहा था, मैंने गांधी में कर दिया होता, आपको पता नहीं मैंने दुनिया की चक्कर काट चुका था। गवर्नमेंट ने मुझे सारे दरवाजे मेरे खुल जाते रहे। तो ऐसे बहुत बैठे उल्टी सीधी बातें करते हैं, बैठ के पता नहीं मतलब I can't tell you kind of nonsense they talk about in the name of peace and non-violence, which is not practical at all. It was also not practical in the days of British. And so anyhow, वो ये कि अब उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतने लोगों ने, हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास ने और हमारे बर्जर्स ने उस नैरेटिव से कमाया, उससे उनको फायदा पहुंचा। आप उसको उल्टा एकदम से कर दो ओवरनाइट में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सुभाष बोस बिकॉज इन सेकंड वर्ल्ड वॉर ही मेड अ चॉइस। The choice was in our India's national interest. हम लोग का अभी भी बीमारी है, खासकर हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे फौजी भाइयों को, कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हो अंग्रेजों की निगाह से। हिसाब में तो हिटलर बड़ा खराब आदमी था, वो तो जो बड़ा खराब, तो अच्छा आदमी कौन था आपका, ये चर्चिल जो आपको गाली देकर गया। तो अपनी कंट्री में अंग्रेज कब्जा करके बैठे, उसकी टेंशन नहीं है। वो चिंता है कि सब आओ वो जर्मनी वाले जो है वो यहूदियों को मार रहे हैं। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी टेंशन है कि किसी को मारता है, मैं पहले अपने घर में देखूंगा।
आज पूरी दुनिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पुतिन साहब को गाली दे रहा है, हम तो नहीं देते, हमें तो मार मिलता है। दुनिया में आप इसके फॉरेन रिलेशंस में आपको एक ही याद है कि आपकी कंट्री के अंदर किस पे आता है। ये कितने अलाइड पावर्स की आप बात कर रहे हो, आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर अमेरिका इन पर्टिकुलर, ये कोई इंडिया की फ्रीडम के विरोध में नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंस को आपका दुनिया का आप लड़ रहे हो हिटलर से, आप कह रहे हो इंडिपेंडेंस की, तो आप उनकी बात कर रहे हो, मेरी बात कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं। तो हमारी इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थे, लाइक इट और नॉट, हमारी इंडिपेंडेंस के फेवर में जनरली एक भी जगह में सपोर्ट है, दे मे बी बैड गाइस बट दे वर सपोर्टिंग अस। तो उस वजह से इस पूरे नैरेटिव का आप निकालोगे तो ये नैरेटिव स्पेशली यूरोप अमेरिका में सेलेबल नहीं है। और टेक इट फ्रॉम मी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यू वुड अप्रिशिएट बेटर, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जिसका हर एक का खाना वहां सेटल हो चुका है, ये लोग इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। तो इकोसिस्टम डज नॉट वांट टू व्हाट नेसेसिटी टू कम आउट बिकॉज़ दे हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम। फिर ये वो थ्योरी फ्रॉड करती है कि इसके निगम से इलेक्शन का वोट मिलेंगे, क्या करना उठा करके क्यों आप नुकसान। तो गवर्नमेंट जो है नहीं कर पाती। Only Moraji Bhai was the one who tried to open it, and he opened partially. Unfortunately, it's of the government way. So I think then we lost a chance, and we could never have given a chance. Thank you. I have got quite a few questions. I can go on, but अभी we have to finish it off. तो कोई questions आपके हो तो बताइए. नामी बाबा जब ये बात आती है तो इसके बाद वो इतने दिन तक साइलेंट क्यों रहे? 5 मिनट का टाइम है सर, ये पूरी रात कहानी ना निकलने का 2 मिनट आपको बताता हूँ। He would say that my coming out is not in India's national interest. People of country would suffer if my identity is disclosed, and there would be sanctions on our country to hand me over to the other side, and people would resist that kind of thing. So he was very clear that my coming out is not going to serve our country's interest. अब उसके पीछे आपको अलग अलग पूरी राम कहानी क्या था, बिकॉज मैं लोगों को बाबा साहब की पूरी नई किताब आई है, उसमें किसी ने मुझे पढ़ के बोला कि यार ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो बड़े सारे कुछ है। मैंने कहा तुम आप क्या समझ रहा है, ये कोई चेतन नगर की लफ्ज़ होगी क्या, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग। आई मीन 70 साल 80 साल पुरानी कहानी है, उसमें 50 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आप इसमें क्या बॉलीवुड की फिल्म ढूंढ रहे हो? कॉम्प्लेक्स है, मजा का पढ़िए किताब, 4 पढ़िए 5 पढ़िए। तो ये पूरी जो आपने सवाल पूछा 200 पढ़ने में हमने पूरा डिटेल में, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप मुझे कोई सवाल पूछते हैं कि कल इलेक्शन में क्या हुआ, तो हम सबको मालूम है कल इलेक्शन थे, हम सबको मालूम है प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो मेरे लिए कमेंट्री देना आसान है। लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ, अब मैं आपको पूछूं कि साहब बीएन मलिक कौन था, तो किसी को पता बीएन मलिक किस लिए बना, तो आपको बताऊंगा आईबी के चीफ तो 2-2 साल के लिए बनते हैं, ये बाबू 16 साल बैठा था, तो किसी को यही नहीं पता कि बीएन मलिक नाम की चुटिया कौन थी। तो आई कांट टेल यू कि उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसका मीनिंग क्या था, कहाँ झूठ बोला था। इट्स वेरी लॉन्ग एंड वाइंडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट इट टेक्स टाइम। बट इन ब्रीफ he would say that my coming out is not in India's national interest. That means you believe that he was there? No, I don't believe. I know he was about to. So I don't believe anything. I said कि I am भगवान का विश्वास खत्म हो गया, तो मेरा belief किसी पे नहीं होता। As far as evidence is concerned, as far as my information is concerned, which is coming from multiple sides, including from the government sources, and I'm putting my neck on the chopping block, and he was a Pashto. There's no doubt about it. And people in Bengal take a view as. Sir, Bharat is all about sun, all about whatever was. भारत is all about Mahatma Gandhi. That's what I understand. हाँ, तो ये peace and non-violence क्या नहीं चलेगा? No, peace and non-violence का देखिए जुमले के बारे में आपको वैसा होता है, उसके देखने के तरीके हैं। जैसे कि you like Beatles, you like John Lennon, of course. No, I like John Lennon, but I am पक्का Beatles fan. He used to sing songs about world peace. बीवी को घर से निकाल दिया तुमने, what did he do with his wife? तो आप दुनिया में शांति की बात करो, अपने घर में शांति नहीं आनी। ये जो जुमला होता है ना, शांति करना, ये करना, वो करना, ये अच्छा लगता है सुनने को बहुत। If somebody is a religious holy man, he say I want world peace, fine. You are a holy man, you are a Buddhist monk, you are a Hindu monk, you are a Jain monk, it suits you. हमारा, मैं आपको I take it back. Second World War जब शुरू हुई, सुभाष चंद्र बोस was there in चेन्नई, मरीना बीच। तो उन्होंने कहा कि जैसी खबर आई कि सेकंड वॉर शुरू हो गई, कि नाउ वी हैव द चांस। ही सेड नाउ व्हाई? उसे कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो अंग्रेजों ने गांधी जी वगैरह, वो सुभाष बोस थे, उसमें प्रैक्टिस थे, बच्चे थे, उनको बोला कि अभी हम लोग फंसे हैं उसमें, अभी आप कोई काम हमको तक मत करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, हम आपको कंसेशन कुछ देंगे, आपको डोमिनेंस से पकड़ा लो। तो गांधी जी ने किसी ने उनको तंग नहीं किया, उन्होंने उल्टा उनकी हेल्प करी सोल्जर्स को रिक्रूट करने में। लेकिन फर्स्ट वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेजों का स्टैंड चेंज हुआ, इनफैक्ट वी गॉट द जलियांवाला बाग। सो सुभाष बोस वोट के देवर एन अंडरस्टैंडिंग कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट मेक दिस मिस्टेक। 1940-45 में भारत का कोर नेशनल इंटरेस्ट क्या था? दुनिया में शांति लाना या कंट्री को आजाद करना?
मेरा मानना है कंट्री को आजाद करना भारत का पहला मेन इंटरेस्ट था। दुनिया शांति लाने के लिए अमेरिका बहादुर बैठा था, तब भी आगे बढ़ा। But the statement is not ready for the freedom. Who said? वो तो people say even today we are not ready for it. अभी भी लोग कहते हैं कि सिंगापुर is much better government than India, वो तो अलग कहानी हो जाएगी ना। तो उसमें ये कहानी है कि फिर सुभाष बोस ने बोला कि थोड़ी देर बाद गांधी जी जाके वायसराय से मिलते हैं और कहते हैं कि इन दिस वॉर वी आर इन आवर सिंपैथीज आर रेडी। तो आप जो चिंता करो अपनी कंट्री की चिंता करो। तो मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट है गांधी जी के फॉलोअर्स में और सुभाष बोस के फॉलोअर्स में, गांधी जी के फॉलोअर्स आर फॉर द वर्ल्ड पीस। गांधी जी ने बोला है उनके पास कि मेरा जो लाइफ का जो एम है वो दुनिया में शांति लेके आना। एंड आई हैव मेट मेनी गांधीज इन माय लाइफ, दे आर ऑल डिवोटेड टू द कॉज ऑफ वर्ल्ड पीस। अपने दिल्ली में पानी आया है, घर में खाने को रोटी मिले ना मिले, दुनिया में शांति। मैं बार बार बोल के तंग आ गया कि दुनिया में शांति लाने के लिए टाउन साहब बैठे हैं, वो लाइन में शांति। आप वहां से शांति लोगे, पहले दिल्ली से पोल्यूशन क्लियर करवाओ। तो वहां पे ये दुनिया की शांति की बातें करते हैं, हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जुमला जो है इंडिया में वर्ल्ड में शांति लाना, खासकर कि वो टू हाई सोसाइटी पीपल, यू गो टू न्यूयॉर्क, यू सिंग सॉन्ग इन मैटर एंड ऑल दैट, इट साउंड्स सो गुड, such a fantastic idea. They are people of peace, mankind and all that. And this whole story of peace for the mankind and shanti, it shows the British in good life. Sir, but it sounds beautiful because with an individual as well, an individual who is following peace and non-violence. We should do this following peace and non-violence. Which will we be talking about? Gandhi? Maybe Jain monks. No, I'm saying keep religion aside. If a holy person, suppose your Jain monk is saying about what peace, I will tell you story because he is talking about. He's a Jain monk. He doesn't belong to me. He belongs to the entire humanity. अब उसने ये कहानी निकल के आ रही है कि जब गांधी जी चिट्ठी लिख रहे हैं वायसराय को कि आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे लेकिन जापानियों को मत छोड़ना आप लोग, तो वहाँ की वर्ल्ड पीस कहाँ थी? उनके ह्यूमन राइट्स जापानियों के नहीं थे। आपने कैसे चिट्ठी में लिख दिया कि आपके मिलिट्री बेसिस अलाउड है यहाँ पे इनको मारने के लिए? उन विचारों के ह्यूमन राइट नहीं थे जापानियों के, ठीक है ना? तो वही वो भी अलग कहानी थी। अब जैसे मुझे याद है, आपने आज तक हम फॉलो नहीं करते, ये हमारे जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की कंटेस्टेंट आती थी लड़कियों को करके, सबको पता है वो मॉडलिंग में जाएंगे क्योंकि वो लाइन ग्लैमर की है, तो उनको बेचारों को करने की जरूरत नहीं। कम से कम मुझे याद है वो मुझसे क्या करोगे क्या करके जाके, कहते हम तो वो एक वाला मदर टेरेसा काम करेंगे, उनका क्या जर्नलिस्ट बनेंगे। You know that she's taking it as a joke, but it sounds so good. I like John Lennon's song. I know him very well. Lennon would have done nothing for the country, but he's singing good song. He's an artist. तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि हम मदर टेरेसा काम करेंगे, कोई नहीं काम करेगा, मदर टेरेसा का काम कर रहा था अभी तक नहीं किया। वो सब जुमले होते हैं, वर्ल्ड पीस की बात करना। अब ऐसे में आपको 50 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। हमारा प्रधानमंत्री जी थे जर्मनी में, गांधी जी की मूर्ति अनवेल करी, वहां जाके बोलते हैं कि दुनिया में आतंकवाद को गांधी जी के चले रास्ते पे हराया जा सकता है। अगर आतंकवाद को गांधी जी के रास्ते पे चलकर लेके हराया सकता है तो अभी तो वो क्यों गया कश्मीर के अंदर? दिल्ली में बैठे कांग्रेसी वाला ठेकी राजा को भेजो ना। अगर ये करा जा सकता है, ये जुमले जो बार बार दिल्ली में पूरी उसकी मैं लिस्ट बना के बैठा हूँ, तो बहुत लंबी कहानी कि अगर शांति के रास्ते पे चल के आप एटम बम को हरा सकते हो तो कब? अगर दुनिया में एटम बम नहीं होना चाहिए, दुनिया में फौज की जरूरत नहीं, तो गांधी जी बोल रहे हैं डिसबैंड करने की बात हुई है, तो दुनिया को भाषण देने की बजाय पहले आप खुद करके दिखाओ। अगर भारत दुनिया से उम्मीद करता है कि दुनिया में आजकल हमारे राजनाथ सिंह ने बोला कि बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए, तो पहले तुम खुद चलो। आप पहले अपनी आर्मी को डिसबैंड करो, उसके बाद आप बात करना शांति कैसे है। आपको मालूम चल जाएगा शांति का पाकिस्तान लेकर आएगा, ठीक है? These are unpractical ideas. They sound very good in ears, and they have no meaning in the real world, but they sound good in your ears and they are famous. Just one. And they allow. I have no problem. I have Fridays at the 6 o'clock. But they at least follow the rules. Did Subhash Chandra Bose ever believe that Japanese, when they land on our shores, were really for freedom of India? क्योंकि अंडमान वाली स्टोरीज में रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि they had even killed the Indian National Army soldiers. आया तो आया नहीं हो इंटरनेशनल आर्मी कितने सोल्जर थे किसान आया के अंडमान में थे वहाँ पे। नो देवन नो अंडमान में कोई इंडियन आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर नहीं थे। मैंने ये मैं बताता हूँ आई अंडरस्टूड इट बिकॉज़ बुक में डॉक्यूमेंट करते हैं। देखिए ऐसा होता है कि ये जो एक जुमला है कि अगर जापानी इस देश पे अगर आ गए, सेकेंड वर्ल्ड में जीत गए, तो वो हमारी वो हालत करेंगे जो अंग्रेज ने नहीं करी, ठीक है? डू यू नो हाउ दिस स्टार्टेड दिस जुमला? किसने व्हाट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस जुमला किसने स्टार्ट किया? हिज नेम वाज विंस्टन चर्चिल।
चर्चिल बाबू जो बैठ के हमारे को गालियां दे रहे हैं, वो ये जुमला फील्ड किया किसी इंडियन बिजनेसमैन को, बड़े मुझे पता नहीं बजाज साहब की बिरला साहब ने किसी को दिया, उसके बाद में मेन स्ट्रीम हो गया। जापानीज नेवर हैड एनी इंटेंशन एवर सिंस सुभाष बोस की उसका उनकी डेरिवेशन अंग्रेजों ने बोला वॉर के बाद में, दे हैड नो इंटेंशन टू कॉन्कर इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, you said अपना ये very glad to raise that point. I'm glad all of you raising this point because I'm able to justify and give the other side of the story. The other point which is made, the Andaman Nicobar in Japanese ने they brutalized, you know, the Indians and all that. मेरे कुछ भाई बंधु हैं कश्मीर पोस्टो में आर्मी वाले, तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि भी आज आपको खबर लगती है कि इस गांव का सरपंच जो है पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, तो क्या आप उसको बिरयानी खिलाओगे? उसने कहा कि बिरयानी में बात की बात है, लकड़ी लेकर चलते हैं हाथ में, पहले तो उससे बात करी जाएगी, और लकड़ी कहाँ डालेंगे उसके बाद हम बात करेंगे उससे, ठीक है जी। दुनिया में कोई भी कंट्री में कोई भी आदमी एनिमी आर्मी को अगर जासूसी करता है, इंफॉर्मेशन देता है, जो अंग्रेज के वहाँ गुलाम बैठे थे अंडमान निकोबार में, जो स्पाइंग करके इंफॉर्मेशन जापानीज के खिलाफ में दे रहे थे उनको अंग्रेजों को, तो जापानीज आर नॉट गोइंग टू फीड देम, यू नो, देयर फिश एंड न्यूज़। सेकंड पॉइंट में बट उन्होंने कहा कि वहाँ के लोकल्स को they were using the tribal there for different purposes, even sexual और जब soldiers ने Indian soldiers ने उनको उसको करने से रोका तो they were shot dead point blank. तो Indian which Indian soldiers, which Indian soldiers? तब तो I think वही थे No, INA came in INA soldiers were not killed in Andaman Nicobar. Are you talking about the Indian army? No. No. This is I believe 44 or 45 sometimes. No, Indian National Army का वहाँ नहीं था, उनका उन्होंने protest किया था कि you have been, you know, Japanese are ruthless. What happens in the war? For example, war is a dirty thing. War is a dirty thing. Wherever you send an army, there will be excesses. So I'm talking about Second World War. तो forget about that. Even in peace time, मैंने एग्जांपल दिया आपने, हमारे दिल्ली की पुलिस में थानों में क्या करते हैं, तो मेरा उसमें ये है कि वो बाइबल में है ना कि दूसरे पत्थर पहनने से पहले अपने घर अपने गिरावट में जाके देखो कि हमने मणिपुर में हमारे आदमी ने क्या किया, कश्मीर में हमारे आदमी ने क्या किया। तो जहाँ जहाँ फौज जाती है अनफॉर्चुनेटली एक्सेस, मैं ये नहीं कह रहा कि जापान में तो वॉर क्राइम्स नहीं किए, बट टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपने कभी चक्रा सिस्टम का नाम सुना जो सामने क्या होता हो कि इंडियन आर्मी के एनवायरमेंट में सेक्स स्लेव कैसे बना के रखी थी, ठीक है ना। तो ऐसा है गंद सबने करा है, वो बेचारे पकड़े गए तो आपने उनको अनमास्क कर दिया। ये जो यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में ये जो अंदाज बना रहे थे, हमारे वॉर क्राइम्स कर रहे थे, लोगों को मारा पीटा गया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वहाँ पे जापानीज में उन्होंने बेमतलब के नॉन बिलीव आधे सच्चे झूठे केस छोड़ करके उनको पकड़ा दिया कि साहब आपने करने वाले ऑन द होल दे वर बैकिंग अस, बट हियर एक्सेसेस दो चार हाँ बोल देंगे ठीक है, बट वो हम नहीं भी करते। आप कभी हांगकांग जाना, go and talk to the local Hong Kong people, especially girls, what do they think of Indians? तो आपको बताएंगे वो लोग कि हमारी इंडियन पुलिस और फौज के लोग वहाँ गए थे 30s 40s में, और हमने क्या बिहेवियर किया उनकी लेडीज के साथ। So just one last question, 2 minutes are left only. So I have got plethora of questions. उसमें से एक बहुत prominent question जो बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है वो मैं पूछना चाहूँगा कि ये एक और myth है, that is कि जो भी हमारी जितने भी invaders आए उन्होंने चाहे मुगल हो उससे पहले भी, और बहुत सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, मॉस्क्स बनाए गए। उसका एक काउंटर ये दिया जाता है कि वो मंदिर भी उससे पहले बौद्ध मंदिर थे जिनको तोड़ के वो मंदिर बनाए गए थे। तो and there is no answer to this. So if I'm not wrong, with regard to the Ram temple controversy, the same statement was made कि राम मंदिर भी उन्होंने बोलकर तोड़ के बनाया था। जब उन्होंने खुदाई करी तो उसमें से कुछ नहीं निकला, उसमें जो भी निकला है कि वो मंदिर ही थे पहले। तो आई थिंक दिस इज दूसरा ये भी है कि अगर जैसे मैं दिल्ली में, आई कैन बिकॉज आई एम नॉट इनटू दिस इशू, बट देन आई कैन टेल यू आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली में तो उन्होंने जैसे मोहम्मद गौरी की फौज उसके अंदर उन्होंने का किले को ऑक्यूपाई किया, फिर उन्होंने उस किले के अंदर जो मेन टेम्पल था उसको तोड़ दिया, और उसको डिनाई कर सकता नहीं कि सारे टेम्पल की ही मटेरियल से उन्होंने उसको बनाया था, वही कुतुब मीनार खड़ी कर दी, इसलिए वो कंट्रोल सॉरी कुतुब मीनार की वर्किंग किसी और की थी। अब वहाँ पे आप उसमें जाके मंदिर में देखेंगे जो मंदिर से तोड़ के बनाया गया, उसमें आपको हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन सब दिखाई देते हैं। तो पहले और हम लोग सब खुद को अपना ही मानते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम है नहीं। तो आई थिंक बिकॉज पहले हिंदूज वर ट्रीटिंग बुद्ध एंड स्टिल ट्रीटिंग हिंदू वन ऑफ अस, इफ नॉट एज गॉड ही इज आवर एग्जिस्टेंस। तो हिंदूज आर नॉट, तो मेरे से पहले के टेम्पल में सारी चीज थी। अब ये जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं
अब वो एक अलग कैटेगरी है, एक जमात है। तो जब मैं सोचता हूँ बुद्धिस्ट के बारे में, तो मेरे दिमाग में कोरियन तो जैपनीज तो दलाई लामा आते हैं। मैं तो आई वुड रादर बिलीव व्हाट दलाई लामा हैज टू से अबाउट दिस। दलाई लामा ने कई बार बोला है, ही इज द लिविंग बुद्धा, नोबडी डिस्प्यूट्स दलाई लामा ही इज द लिविंग बुद्धा। वो खुद ही कहते हैं कि अपना भारत से तो हमारी नहीं भूमि है, हम यहीं से बचा के सारा सामान वहाँ ले गए। तो ये अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस है उसमें। तो बुद्धिस्ट टू मी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, व्हेन आई थिंक ऑफ बुद्धिस्ट, यहाँ से तो खत्म होंगे महाराज के भगवान जी, जगती और बुद्धि दलाई लामा बुद्धिस्ट है, जापानी हमारे बुद्धिस्ट है, हमारे कोरियन बुद्धिस्ट है, दे फॉलो यहाँ पॉलिटिकल जमात क्या बोलती है उसका क्या है। So many thanks Anuj bhai for Thank you. doing this. Thank you. Thanks so much, ladies and gentlemen. A special thanks to Mr. Anuj Dar and Mr. Vikrant Chandeliya for such great insights on this session. A special thanks also goes out to our heritage partner LIC for their unwavering support of OCLF 2024. With that, I thank you all for joining us. I hope you continue enjoying the festival. The next speaker for the next session is right here. You can continue enjoying the festival. Thank you so much, ladies and gentlemen.